Most important message which goes out from this film is there's a dialogue, and also Indian Air Force believes that they pledge never to leave one of them behind. So that is the whole story behind it. ये अभी प्लेज अभी जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे. वो फिल्म के बाद आपको पता चलेगा what does it exactly means. Absolutely looking forward. The next question is for Veer. Veer, making your debut with Skyforce is a big moment, of course, and playing squadron leader Devaiya is a big responsibility. How does it feel to be a part of the film that not only marks your debut but also tells the story of a national hero? What was your prep for the film like? Thank you for the question. It was a very big challenge and opportunity for me कि मुझे मौका मिला ये किरदार एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का इस फिल्म में. स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जो कुछ किया 1965 की जंग में वो सिर्फ 23 साल बाद दुनिया को पता चला और उनके परिवार को और वायुसेना को और भारत सरकार को पता चला. तो इट वाज माय गुड फॉर्चून और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर एंड वी वर ऑल्सो एबल टू मीट द फैमिली द वाइफ ऑफ स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया लास्ट वीक. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट था और बहुत प्राइड और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है. एंड भगवान से यही आशा होगी और यही उनकी हमारी विश होगी कि सबको पसंद आए. थैंक यू वेरी मच. फिल्म मैं आपको बताता हूँ. It's very nice that he is safe. It's very good. We are happy. The whole industry is very happy that he is very safe. And it was very brave of him that he protected his family, and that hats off to him. And I would say मैंने उसके साथ एक फिल्म की है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन अगली बार अगर हम करेंगे तो हम बनाएंगे फिल्म दो खिलाड़ी. The second question also, actually, that you just announced your film, Kadamba, which is releasing in April itself. Ma'am, are you not going to ask about Skyforce? Ma'am, that's Please. great. Thank you, ma'am. Actually, मेरा plan तो यही था. I was going to join Navy. लेकिन as life, as destiny had, I got into martial art, and then from martial art into modeling, and from modeling then into being an actor. और अभी जब मैं एक्टर बना तो अगर मैं एक्टर नहीं होता, अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के कहीं आर्मी नेवी या एयरफोर्स में नहीं होता तो आई वुड स्टिल बीन स्ट्रगलिंग. पहला वो भूल जाऊँ. जी मेरा फेवरेट गाना है माई. हो गया रिकॉर्ड. ओके सेकंड वन इज लाइक हमेशा अक्षय कुमार जो है जाने जाते हैं चैलेंजिंग रोल्स के लिए, और ये स्काई स्टंट वाला जो जॉनर है ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आपका होने वाला है. तो ये कितना चैलेंज, कौन सा वाला सर ये जो स्काई स्टंट जो होने वाला है जो फर्स्ट टाइम आई थिंक आप करने वाले एयर ऑफिसर. अच्छा, एज एन एयरफोर्स ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें लाइक चैलेंजिंग इसमें ये है कि देयर इज अ सर्टेन वे एन एयरफोर्स ऑफिसर वॉक्स. His posture is very different, so we had to have that and make sure that हम उसके ऊपर खड़े उतरे. तो these were the few things. Otherwise, बाकी तो I just kept on following what my director had to say. That's it. इन्होंने बहुत subtle performance दी. He's not gone overboard. And beginning of the film से he's not trying to show कि मतलब एक हीरोइज्म से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की. He's been a guy next door. So that takes a lot of thinking and a good mind to think that I should not be go above my character. I should be मैं अपने लिमिट के अंदर रहना चाहिए. So that is one thing which I loved about him in the film. Thank you. Hi, Akshay. Here. Sir, नीचे. Sir, Niche. Yeah, sir. Yeah. Hi, Akshay. I'm Akshata from Hindustan Times. So, my question to you is कि what was the toughest part, like the toughest bit about shooting for Skyforce when you were shooting? Toughest part? I think so. It was not much of any kind of tough part for me, and
A little bit what toughness was there, that I had to wear the helmet and do all the cockpit scenes, which was very heavy because I had to wear it from that time. And my director made sure that it is very authentic. So, 8 ghante, we used to get a lot of neck pain. And we had to wear it, and we used to sweat continuously, and a heavy jacket was put. So we were doing that kind of, that was, I think, the only toughest part. Okay, I have another. The whole story. The story was very important. It was a kind of a story which I would love to be a part of it. And the first time I remember, they both had come and we spoke about the story, and I loved it. And the way the screenplay was falling, and it is a true story. That was also another part. And I had never played an Air Force officer, so that was another part. And there was good amount of action and dog fights and all. So that was also, I had never done it. So all this combined together, that is what made me say yes to it. People every day. Ma'am, may I ask you, how many press conferences have you gone to? Just a few. Many of them? कभी आपको किसी को पूछा, किसी ने बोला बहुत बेकार लगा है, मजा नहीं आया काम करने में? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ. I always find this question very amusing that you sit with the other person, भले वो अंदर से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन थोड़ी कुछ बोलने वाला वैसे ये नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें मजा ही कुछ और आया था इस फिल्म के अंदर. वैसे मैं कभी सोचता हूँ, ये ऐसे इंटरव्यू देख के ये कोई पूछ लेता है, how was it working with that person? नहीं अक्षय, that was not my question. My question is आपकी टाइमिंग्स, आपका डिसिप्लिन, मुझे उसके बारे में जानना है. अच्छा बता. सॉरी मेरी टाइमिंग खराब थी. आई थिंक जैसे अक्षय सर ने इतने सालों से हम सबको इंस्पायर किया अपने फिटनेस और डेडिकेशन डिसिप्लिन को लेके, वैसे ही उनका वो प्रभाव मेरे पे पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा कॉल टाइम होता था और जल्दी पैकअप हो जाता था 8 घंटे. पर सर जब सेट पे होते हैं तो वो और कुछ नहीं देखते, ही इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन द मोमेंट. और उनकी एक चीज़ है कि अगर कोई भी सीन हो, कितने इमोशनली हैवी सीन्स है इस फिल्म में, तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया पूरे यूनिट के लिए. ऐसे बहुत से दिन थे जहाँ पे पूरा यूनिट रो पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था, भले वो म्यूज़िक के साथ हो, कुछ चीज़ें उन्होंने बोल दी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया. तो हाँ, अब एक डिसिप्लिन और एक फिटनेस की बात तो होती है, बट एज सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग लेजेंड, दिस इज व्हाट ही गॉट टू द फिल्म एंड ब्लेस्ड अस विद हिज प्रेजेंस. सो थैंक यू. Hi Akshay. Hi everyone, I'm Fawzia from India News and NewsX. So Akshay, first of all I want to say that you are very charming. My question is that एक्शन सीन में तो आप मास्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? Thrilling? Yes. And सबसे बड़ा चैलेंज? थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? एक्चुअली इसके बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता, बिकॉज ये फिल्म देखनी पड़ेगी एंड उसके हिसाब से ही मैं बता सकता हूँ. थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? चैलेंज ही बता दें, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज आज जब झूमर पे खड़ा कर दिया था इन लोगों ने. दैट वाज बिना हार्नेस के. दूसरा था व्हेन द पार्ट वेयर I along with all my other colleagues we attacked Sargodha, which is in Pakistan. So that was also a very thrilling part, visualizing the whole thing. So these are the things. एक्चुअली हम लोग के सेट पे हमेशा एवरीडे कुछ ना कुछ थ्रिल होता ही था. मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सर अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, कोई अपनी तारीफ नहीं करता है, बट मैंने देखा है इनको एकदम पंक्चुअल, तारीफ ही होगी, पंक्चुअल आते थे, बट माहौल सारे सीन्स बहुत ही ग्रिपिंग सीन्स हैं. वो सीन्स क्योंकि सर एक ह्यूमर के तरीके से आते हैं, हम लोग ने उनको एज अ कॉमेडिक एक्टर देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है इस फिल्म में, जो सटलनेस के साथ जो कैरेक्टर परफॉर्म किया, वो बहुत थ्रिलिंग है देखने में. जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के. इस तरीके का परफॉर्मेंस सर का बहुत दिन बाद दिखेगा. तो वो मैं बोलूँगा कि पिक्चर थ्रिलिंग है,
एवरीडे उसको बनाने में इसको जोड़ते हैं, इसको ये करते हैं, इसको पकड़ के करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। हर पिक्चर में फाइट, इसमें हैंड टू हैंड फाइट नहीं है, स्टिल दैट थ्रिल इज देयर, दैट एनर्जी इज देयर। अक्षय सर, we, दिनेश, थैंक यू सो मच एंड आई थिंक 26 जनवरी की हम लोग अराउंड हैं एंड दिस इज सच अ ट्रीट, जितने भी देशभक्त हैं, और सच अ ट्रीट अराउंड 26th of January. Thank you very much. आगे कोई नहीं जाएगा, ऐसे करेंगे सारा शूट, कोई आगे नहीं जाएगा। My next question is to Veer. First of all, Veer, congratulations for your debut. Thank you, So thank you. your debut alongside Akshay, Sara and Nimrat. How did you handle the pressure? I mentioned the story before, but बहुत साल पहले, I think 9 साल पहले, I was with Sara in a hotel and Sir was promoting Airlift with Nimrat ma'am, and we happened to meet them as fans. And now the world, I mean, it's a full circle when we got to share screen time with them and screen space with them. So yeah, it was very overwhelming, and God has been kind, I think, with my mom and dad's blessings. You know, I'm here and I will continue to work very hard. Put my head down like I have been for many years and hopefully prove to all of you all that I deserve to be. Thank you. Also एक और चीज़ थी कि जब मुझे डायरेक्ट नहीं करना, मुझे प्रोड्यूस करने के उन्होंने बोला, तो डायरेक्ट किया है मेरे ही असिस्टेंट ने, जो मेरे साथ स्त्री में था, वाला में था, भेड़िया में था, और वीर भी भेड़िया में वन ऑफ द एडी थे मेरे। तो ये पूरा इनको ये 2 लोगों का डेब्यू था मेरे साथ, जो मेरे साथ ही उन्होंने काम शुरू किया था। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि उनके साथ उनकी फिल्म को एक सपोर्ट दे, जैसा मुझे सपोर्ट आप देते रहते थे, तो वैसे ही सपोर्ट मैंने इन 2 जल्दी से करो सब्सक्राइब।